Hello my dear students, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter number 14, Natural Resources from class 9th. Today we will discuss what are natural resources. So my dear students, the resources that we are using, that are present in our nature, that are free of cost, that are called natural resources. What are natural resources? This may be sunlight, this may be air, water, soil, then we can say plants and animals. All these things we are using that are present on our earth, that are natural resources. Like, what is the main difference between these things? These are non-living, that are called abiotic natural resources. Abiotic natural रिसोर्स. नेचुरल है क्योंकि इन सबको हमने नहीं बनाया है. दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ. ठीक है. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर बायोटिक. ये क्या है? बायोटिक, दैट मीन्स लिविंग. बायोटिक का मतलब क्या है? ये है लिविंग. तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज की तरह. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस नेचुरल रिसोर्सेज वी विल डू दैट इन टू कैटेगरी. वन इज एबायोटिक, नॉन लिविंग, एंड वन इज biotic, that means living. ठीक है. What we have to do? We have to go for sustainable use. We have to use them, but we have to use them in that way we are not going to harm them. Like, if we are harming, if we are disturbing the, you can say, air composition or water composition, soil composition with the help of pollution, so we are you can say we are disturbing the you can say whole ecosystem. Alright, because whatever the interaction between biotic and abiotic, this biotic and abiotic component system, this form ecosystem. Alright, our ecosystem is a system that helps to study the interaction between living and non-living things on this earth. Alright, so natural resources बेटा, इनको बचाए रखना, इनको इसी तरीके से रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं in what number these natural resources are present on our earth. So they are present in abundance. Like, we cannot say कि आज sunlight हमें ज़्यादा यूज़ किए तो कल sunlight नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. Sun is a natural resource. It is a form of star that is giving us sunlight, and ultimate source of energy is sun. Sunlight किससे मिलती है students? हमें sun से. और sun क्या है? ultimate source of energy. Alright, देखिए सन की एनर्जी सबसे पहले कौन लेता है? प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टेकन बाय प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है. उसको कौन लेता है? हर्बीवोर, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं. इनको कार्निवोर ले लेता है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर. और उसको फिर टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, जैसे लायन है या ह्यूमन है. So the cycle of energy that starts from sun, that's why sun is called ultimate source of energy. sun को हम क्या कहेंगे students? ultimate source of energy कहेंगे. चलिए उसके बाद बात करते हैं students, हमारी अर्थ पे air is form a blanket here. अगर हम बात करें अपनी अर्थ पे बेटा, तो 75% of our earth is covered by water and that is called hydrosphere. और जो एयर का एक ब्लैंकेट है उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर. तो हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और जो सॉइल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? लिथोस्फेयर. सो ऑल दैट इंक्लूड्स हाइड्रोस्फेयर, दैट रेफर्स टू वाटर, atmosphere that is related to air, lithosphere that is related to soil, all that forms biosphere, and that's why the life is possible on the earth. All these things, hydrosphere, atmosphere, lithosphere, all these things are not possible at the same time in other planets. They are not present there, that's why there is no life there. If we talk about our earth that is covered by 75% of water, we know that water is not useful. Most of the water is marine, and but somewhere it is also helpful in making water cycle. The water evaporates and it forms clouds, and then it's rain, and that again come to the water bodies. Alright, so whatever is present in our nature that is having some use, that is having some benefit, we have to go for it. Alright, we have to see that in that way. चलिए
द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, एयर को हम ब्रीथ ऑफ लाइफ करें, आप सभी को पता है एयर क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेज है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन है एयर के अंदर, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो हमारे लिए है दैट इज़ ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस लेते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। हम रिलीज़ कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन बाय प्लांट्स। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑलराइट, क्यों लेते हैं? फोटोसिंथेसिस, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और वाटर भी लेते हैं। आप सभी को अगर फोटोसिंथेसिस याद हो तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स क्या यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करता है, ठीक है। एंड इट फॉर्म इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या बनाता है स्टूडेंट? ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज इट यूज एज एनर्जी सोर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे प्लैनेट्स की तो वहाँ पर जैसे हम वीनस और मार्स की बात करें स्टूडेंट्स, यस, इफ़ वी टॉक अबाउट वीनस एंड मार्स तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट मी चेक हियर। यस, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट वीनस एंड मार्स, नाइट्रोजन कितनी है स्टूडेंट वहाँ? 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स वहाँ नहीं है तो nobody is there that is going to fix that carbon dioxide. That's why life is not possible on that planets on Venus and Mars. ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है? जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। द सेल दैट आर नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेज हैं स्टूडेंट? आप सभी को पता है ये कंबशन से आती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में चाहे वो कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इवन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वी आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड बाय प्लांट्स। इसको ग्रीन प्लांट्स फिक्स करते हैं और फिक्स करके क्या बना लेते हैं स्टूडेंट? ग्लूकोज। दैट इज़ फिक्सेशन। और कौन हेल्प कर रहा है इसमें? कौन हेल्प कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट? इसमें हेल्प कर रहे हैं सनलाइट एंड इसमें हेल्प कर रहे हैं क्लोरोफिल। क्या है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, कमिंग टू द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में बेटा एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टेडी, ठीक है। हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है स्टेडी। आपको पता है डे लाइट में जब सनलाइट होती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हॉट होता है, ठीक है, थोड़ी गर्म होती है हमारी अर्थ, और नाइट के टाइम में वो टेम्परेचर क्या होता है? स्लो डाउन आ जाता है, ठीक है। तो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 190 टू 100। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट को क्या कहेंगे स्टूडेंट? एयर की मूवमेंट को कहते हैं विंड। एंड दैट विंड एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, विंड एनर्जी को वी कैन यूज़ दैट विंड एनर्जी इन विंड मिल्स, ठीक है। हम उसको विंड मिल्स में यूज़ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंड मिल में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। दैट एनर्जी हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ दीज विंड मिल्स, इन विंड मिल्स को मूव करती है। एंड दैट विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को किस में? डैम्स में स्टोर कर लिया जाता है। डैम्स आर द लार्ज बॉडी दैट स्टोर वाटर। तो डैम में वाटर को स्टोर करते हैं एंड व्हाट हैपन? वाटर को स्टोर करते हैं एंड दैट यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज का स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट किया। क्या किया आज हमने? आज हमने किया है दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? मैंने आपको बताया दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में कौन से आ जाएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक में सनलाइट है, एयर, वाटर, सॉइल, ऑल दैट कम्स इन एबायोटिक।
ठीक है। उसके बाद आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है वाटर और थोड़ा सा डिस्कस किया है एयर, ठीक है। एयर और वाटर को हम किस तरीके, इसके अलावा आपको पता है वाटर, ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें या फ्रेश वाटर की बात करें, सो दैट मेक्स टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ओके फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर concepts from the chapter natural resources. Thank you.